आई होप फैट रिक्वायरमेंट कितनी है वो समझ में आई होगी सबको. हाउ कैन वी रिड्यूस फैट कंटेंट, ये भी आपको मैनेज करना है. नाउ हम प्रोटीन्स कर रहे थे. ओके, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. मैंने बताया था 9 अमीनो एसिड्स होते हैं. एंड हम एज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे कि कैसे चेंजेस होता है रिक्वायरमेंट का प्रोटीन के लिए. Okay, so protein is why protein is important, because it's builds our body. Actually, it is a it makes to cells our body and repair our body. Okay, repair our cells. So it is very essential in our daily diet. Okay. And for my patient, I recommend bedtime milk. It repairs your cells, and if you add turmeric in that, turmeric gets anti-inflammatory effect. So आपका जो swelling वगैरह है, ये सब चीजें ठीक होती हैं. पफिनेस वगैरह ठीक होती है फेस की. एंड लाइटनिंग, लाइक अगर सेल रिपेयर अच्छा हो रहा है तो सेल्स अच्छे दिखेंगे ना, राइट. तो स्किन आपकी अच्छी दिखती है नेक्स्ट डे. Okay, now environmental temperature. As environmental temperature rise or fall above the below and range of thematic neutrality, animal begin to increases their caloric expenditure. क्या होता है, जब गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी डिफरेंट हो जाता है. सर्दियों में क्या करते हैं एनिमल्स, अगर की बात करें हम, अगर वाइल्ड एनिमल्स की, तो वो क्या करते हैं, कहीं कहीं जाके सो जाते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते एनर्जी को. ठीक है, ताकि उनको ज्यादा हंटिंग नहीं करने पड़े, क्योंकि वो उनको एनिमल्स अवेलेबल नहीं होते हंटिंग के लिए. वैसे ह्यूमन भी क्या होता है, थोड़े से लेथार्जिक होते हैं विंटर्स में, एंड दे एक्सपेंस लेस एनर्जी. ओके. और एक और रोल है, अगर एक और रोल होता है एनर्जी का, कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है. अगर ठंड है तो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उस टेम्परेचर में लाने के लिए भी एनर्जी खर्च होती है. ओके, तो वहां पे भी एनर्जी एक्सपेंडिचर अलग होता है. एंड अगर गर्मी है तो स्वेटिंग करके हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. So as environmental temperature rise or fall above or below the range of the thematic neutrally, animal begin to increase their caloric expenditure to maintain their body temperature, and an increase in energy needs is accompanied by an increase in the protein requirement for maintenance. In addition, nitrogen is lost during profuse sweating that occurs in very warm environments, which accounts for more protein intake in diet. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर नाइट्रोजन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोटीन ओनली. तो अगर हमें नाइट्रोजन का लॉस ज्यादा हो रहा है तो हमें नाइट्रोजन का इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा. तो नाइट्रोजन इंटेक कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा. ओके. Previous diet, the effect of previous diet in the determination of protein requirements is quite profound. Malnourished people have a higher protein requirement than well-nourished people. अगर कोई नॉर्मल बॉडी वेट का पर्सन है और कोई अंडर वेट है, उसका ऑलरेडी सेल क्या है, माइनस में है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए तो चाहिए ही, साथ में मेंटेन करने के लिए भी चाहिए. तो उसका ऑब्वियसली उसका जो रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा एक नॉर्मल पर्सन से. Okay, so in malnutrition patient, the protein requirement will be higher than normal patients.
Every protein in the body has a function, and if some of these protein are lost, there is a loss of body function. Okay. Support of these concept is seen in the reduced ability of protein depleted animal to fight infection or respond to the metabolic effect of trauma. फिजिकली एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी में कैसे डिफरेंस होता है? इन अ नंबर ऑफ स्टडीज द एथलेटिक परफॉर्म ऑफ subjects could not be directly related to the quantity of protein consumed above the minimum requirement, unlike a popular fad that heavy muscular requirement of heavy protein diet. Okay, generally as the energy requirement is increased to support the increase of muscle activity. Muscle activity के लिए क्या चाहिए? Ultimately proteins चाहिए. I'll take 30 minutes, 30 seconds break. Actually, I need AC. I will change my room, please. Huh? So bear this. I'm switching off my camera for 30 seconds only. Okay. I'm not tolerating this temperature. Sorry for the disturbance. Now we have started previous diet. Okay, the effect of previous diet in the determination of protein requirement is quite profound. Malnourished people have a higher protein requirement. ये हमने बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि उनका सेल्स बनाना भी है न्यू, एंड जो है ऑलरेडी उसको मेंटेन करना है. ओके, फिजिकल एक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करेगा? इन अ नंबर ऑफ स्टडीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट्स कुड नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द quantity of protein consumed above the minimum requirement, unlike a popular fact that heavy muscular work required a heavy protein diet. Okay, generally as a energy requirement is increased, अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है, लाइक कोई वर्कर है, ठीक है, हार्ड वर्कर है, तो उसको क्या ज्यादा प्रोटीन चाहिए? नहीं, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो काम करने के लिए उसको एनर्जी एक्सपेंस होगा, ना कि प्रोटीन एक्सपेंस होगा. बॉडी तो उसको सेम ही बॉडी वेट मेंटेन करना है. एवरेज जो बॉडी वेट है वो सबके लिए सेम है. तो इन दैट केस देयर विल बी नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट. ओके, जहां जैसे 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं: सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मॉडरेट लाइफस्टाइल एंड हेवी लाइफस्टाइल. ठीक है, तो सेडेंट्री में आप देखेंगे जो भी ऑफिस वर्कर्स होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, सारे सेडेंट्री में आते हैं. तो ज्यादातर बैठ के ज्यादा मूवमेंट का काम नहीं करते, तो दे कम्स इन सेडेंट्री लाइफस्टाइल. एंड मॉडरेट में आएंगे जैसे बस ड्राइवर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो ये मॉडरेट में आते हैं. हेवी वर्कर्स जो बाहर लेबर का काम करते हैं या फिर काफी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे कम्स इन हेवी वर्कर. तो तीनों में प्रोटीन रिक्वायरमेंट विल बी सेम, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, बट द कैलोरी रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट. ओके, क्योंकि वो एनर्जी अलग अलग खर्च कर रहे हैं, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट
डिफरेंट होगी. So calorie different होगी, that means we have to change the carbohydrate part. As can be anticipated, males, due to their greater physical activity and larger body size, have a larger protein requirement than females. Pregnancy, lactation and trauma increase the protein requirements. That means pregnancy में क्या है, न्यू सेल बन रहा है बॉडी के अंदर, एक और बॉडी बन रही है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन रिक्वायरमेंट विल बी इंक्रीज. लैक्टेशन में भी मिल्क प्रोडक्शन होता है, उस केस में भी प्रोटीन है, मिल्क इज ओनली प्रोटीन, सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. एंड थर्ड इज ट्रॉमा, दैट मीन्स कोई चोट लगी है, कुछ कट हुआ है बड़ा सा, तो वहां पे जो क्या होगा, हीलिंग होगा सेल का. एंड हीलिंग होने के लिए वहां पे क्या चाहिए, सेल्स रिपेयर के लिए प्रोटीन्स चाहिए. ओके, सो नाउ यू रियलाइज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स प्ले अ रोल टू डिटरमाइन द प्रोटीन रिक्वायरमेंट. ओके, सो क्या क्या फैक्टर्स हो गए प्रोटीन चेंज के लिए? उनकी प्रेगनेंसी, अगर कोई एक्स्ट्रा सेल बॉडी में बन रहा है, उनका लैक्टेशन टाइम, या फिर कोई ट्रॉमा के केस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है. टाइफाइड के केस में बहुत ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो जाता है, फीवर में ज्यादा प्रोटीन हो जाता है. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में बहुत मसल वेस्टिंग होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस में 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो जाता है रिक्वायरमेंट. Protein, apart from growth, repair and maintenance, also lend a hand in providing energy. Okay, if such a situation arises, excess of amino acids are converted into glucose. अगर बहुत ज़्यादा भी proteins लेते हैं, तो they will convert into glucose in the liver or directly oxidized to provide heat and energy. So हमेशा जो भी एनर्जी होता है अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, हीट, एनर्जी एंड वाटर, 3 चीज ही उससे ब्रेक डाउन होके बनती है. ओके, सो प्रोटीन कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी इफ रिक्वायर्ड. अगर जरूरत पड़े तो वो एनर्जी का भी काम करेगा. दैट मीन्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी खा रहे हैं तो भी हमारा काम चलेगा, अगर हम प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में खा रहे हैं. न्यूबॉर्न इन्फेंट्स कैन एब्सॉर्ब प्रोटीन इन फैट फ्रॉम देयर मदर्स मिल्क, including antibodies that provide protection from infection. न्यूबॉर्न में मिल्क जो फीड करते हैं न्यूबॉर्न्स, तो उनको मिल्क में क्या मिल रहा है, DHA प्लस एंटीबॉडीज प्लस प्रोटीन्स. ठीक है, एंड वन थिंग आई एम टू टेल यू दैट मिल्क में आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है. तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक ओनली मिल्क रेकमेंड करते हैं, तो उनमें आयरन कहाँ से आता है, जो हीमोग्लोबिन बनता है, ब्लड बनता है, वो कहाँ से बनता है, तो वो स्टोर करके लाते हैं, मदर के वोम से ही स्टोर करके लाते हैं, वही वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं टिल 6 मंथ, एंड दैट इज recommended. On the other hand, there are individuals who are susceptible to reaction with certain other protein. For example, those with celiac disease react to gluten and some to cow's milk protein. किसी किसी को एलर्जी होती है, आपने सुना होगा. ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, एंड उसको फॉरेन बॉडी समझ के वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, पेट दर्द होने लगता है, ये सब बॉडी रिएक्ट करती है. एंड सेकेंड थिंग, ग्लूटेन होता है, एक वीट का कंटेंट है, वो नॉर्मली वीट में रहता ही है, तो उसको खाने से जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनको प्रॉब्लम होती है, अचानक से लूज मोशन होना, अचानक से इचिंग होना, वोमिटिंग होना, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है. उस केस को सीलिएक डिजीज कहते हैं. ठीक है, तो उस केस में कुछ भी हम वीट प्रोडक्ट नहीं देते हैं, स्ट्रिक्टली बंद करते हैं. और किसी किसी को हल्की होती है, लाइक थोड़ा ज्यादा खाने से, लाइक मैदा में ग्लूटेन ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल वीट का आटा, होल वीट का आटा. ओके, तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें से फाइबर निकाल दिया, तो प्रोपोर्शन ऑब्वियसली बाकी चीज का ज्यादा हो गया.
जब वो बीज का आटा था तब वो क्या था, एक प्रपोर्शन कम था ग्लूटेन का, बिकॉज उसमें पहले फाइबर भी था। किसी किसी को मैदा खाने से खाली प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें कंटेंट ज्यादा है ग्लूटेन का, तो उस केस में सिर्फ जो हाई ग्लूटेन फूड है उनको हम बंद करते हैं, like biscuits and maida products, breads. In addition, some beans like rajma and soya beans contain proteins which are harmful unless well cooked. अगर राजमा बीन्स को अच्छे से कुक नहीं किया है तो वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है. Their gut don't like allow that. So प्रोटीन्स एक्चुअली थोड़ा हार्डर होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, तो हम ऐसा प्रोटीन प्रेफर करेंगे जो इजीली डाइजेस्ट हो. लेकिन अगर डाइजेशन अच्छा है, पर्सन इज एक्टिव, पर्सन काफी हेल्दी है, तो उस केस में हम सब तरह का प्रोटीन देंगे. लेकिन अगर पर्सन ओल्ड एज है या ज्यादा छोटा बच्चा है या फिर वो काफी इनएक्टिव होने की वजह से उसका डाइजेशन वीक हो गया, तो उस केस में हम राजमा बीन्स ये सब नहीं देंगे. बट दे आर ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं कि उनको एविल बना दिया कि नहीं ये तो खराब चीजें हैं, है ना. तो दीज आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो डाइजेशन को अच्छा रखना है, कर्ड इंक्लूड करना है डाइट में, जिससे कि हमारा गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो अच्छा बना रहे और हम हर चीज को डाइजेस्ट कर सकें. Deficiency of protein is one of the most common nutritional disorder in the world today and affect both adults and children, especially in less developed nations. Like India में भी nutritional deficiency बहुत ज़्यादा है. The symptoms vary. In many situations, it is difficult to separate protein deficiency from energy deficient. दो तरह की deficiency होती है, एक होती है प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी होती है और ये जनरली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में होती है, और एक होती है प्रोटीन डिफिशियंसी ओनली. तो प्रोटीन डिफिशियंसी तो बहुत कॉमन होती है, वो मिडिल क्लास लोगों में भी होती है. द सिम्टम वेरी इन मेनी सिचुएशंस. इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट प्रोटीन डिफिशियंसी फ्रॉम एनर्जी डिफिशिएंट. इन चिल्ड्रन वन may observe the different symptom and visualize them all as part of continuum called protein energy or protein calorie malnutrition. Protein calorie malnutrition, that means protein carbohydrate malnutrition only. ठीक है, they in short we call them PEM and PCM. प्रोटीन एनर्जी malnutrition and प्रोटीन कैलोरी malnutrition दोनों सेम ही है, क्योंकि कैलोरी क्या है, एनर्जी सेम ही है ना. कैलोरी से एनर्जी मिलती है एंड कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है, तो ऑल आर सेम. तो ये जस्ट इसके नेम है डिफरेंट, बट डिजीज इज सेम रेदर देन डिस्टिंक्टली डिफरेंट नेचुरल डिसऑर्डर. तो इसमें क्या होता है पीएम में, इसमें प्रोटीन भी डिफिशियंसी है बच्चे को, एंड ये जनरली छोटे बच्चों में होता है एंड जनरली लो सोशियो इकोनॉमिक में होता है. ओके, तो इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है बच्चे में, एनर्जी की भी कमी होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होती है, और माल न्यूट्रिशन तो पता ही है कि खराब न्यूट्रिशन. तो इन दोनों की कमी होती है. इस केस में बच्चा कैसे दिखता है, बहुत ही स्किनी होता है बच्चा. ठीक है. Visible fats, accumulation of water in the interstitial space. Proteins, amino acids that are indispensable and are not synthesized in the body. एल्बुमिनिज्म होगा ये. ठीक है, एल्बुमिनिज्म दैट मीन्स प्रोटीन की कमी होती है इसमें. Blending two or more proteins so that the excess of essential amino acid present in one protein make up the deficiency of same amino acids in another protein. Amino acids that are dispensable and can be synthesized in the body. What is edema? Edema that means swelling of like any part. क्या होता है इसमें, वाटर रिटेंशन हो जाता है. जनरली लोअर बॉडी पार्ट में वाटर रिटेंशन होता है,
और ये जनरली सोडियम इंटेक बढ़ने से होता है और प्रोटीन लैकिंग होने से भी होता है। हमने पीछे पढ़ा है कि प्रोटीन क्या करता है, वाटर को रेगुलेट करता है। इन टेबल 2.24 यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स। ओके, ये स्ट्रक्चर बेस्ड डिवीजन किया गया है। मोनोसेकेराइड सिंपल होते हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। डाइसेकेराइड्स में दो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है। ट्राइसेकेराइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट का एग्जांपल है मोनोसेकेराइड्स में क्या आता है, ग्लूकोज मैंने बताया जैसे ही खाएंगे वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको कोई भी और ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मॉलेस्ट लास्ट स्टेज में है, समझ लीजिए, उसको और ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं है, सिंपल सेल है, उसको और क्या तोड़ना है। तो दैट मीन्स दिस इज मोनोसेकेराइड। और कैसे मिलेगा? फ्रूट से, हनी से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो मोनोसेकेराइड्स में आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज दैट मीन्स शुगर, है ना, एंड फ्रुक्टोज दैट मीन्स फ्रूट के सोर्सेज से आएगा, फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस। गैलेक्टोज मतलब मिल्क के थ्रू आएगा, ठीक है, मिल्क में जो भी कार्ब्स होते हैं दैट इज गैलेक्टोज। Now disaccharides में maltose, lactose and sucrose. Okay, now ग्लूकोज के इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं। डाई मतलब मैंने बताया था पहले भी 2, है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों होते हैं। इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। लैक्टोज मीन्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों ही होता है। तो ग्लूकोज सिरप जो होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। शुगर केन एंड शुगर यूज एज एडिटिव्स। सुक्रोज किस में होता है? शुगर केन में, गन्ना में। उससे क्या बनता है? चीनी बनती है ना, दैट इज सुक्रोज ओनली। ट्राइसेकेराइड्स, रेफिनोज, माल्टी, ट्रायोज। ये किससे मिलता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। इसका मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। 3 मॉलिक्यूल से बना है ये, बिकॉज इसका नाम है ट्राइसेकेराइड्स। ओके, तो ये किस में मिलेगा? हमें चिकपी में मिलेगा। लेग्यूम्स मतलब छोला, राजमा, ओके, काले चने, दैट कम्स इन लेग्यूम्स। जो भी होल दालें होती हैं दैट कम्स इन लेग्यूम्स। पल्सेस मतलब दालें जो तोड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ब्रेक की हुई रहती है। एंड ग्लूकोज सिरप। टेट्रासेकेराइड्स, टेट्रा मीन्स 4, ओके, तो इसमें 4 मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, और ये हमें मिलेगा ग्लूकोज सिरप से, बीन से, लेग्यूम्स से। तो एक ही सोर्स में काफी न्यूट्रिशन अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि बीन्स में तो ये भी लिखा था, ये भी लिखा है। ओके, पेंटासेकेराइड्स, पेंटा मीन्स 5, इसका भी सोर्स बीन्स एंड लेग्यूम्स है। देख रहे हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स जनरली आपको डाई के बाद आ रहा है, लाइक ट्राई एंड पेंटा और टेट्रा में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। शुगर अल्कोहल्स, ओके, इसमें क्या होता है? सॉर्बिटॉल होता है एंड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इफ यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट। नाउ हियर इज ब्रश बॉर्डर। डिओडिनम में क्या होता है? यहाँ पे डिओडिनम मैंने बताया था स्टमक के जस्ट बाद में जो इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, स्टमक के नीचे जो ऐसे करके निकल के आता है पाइप जैसा, लाइक दैट इज डिओडिनम ओनली। ओके, तो वहां पे क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे लेकिन डायग्राम में आपका माउथ से दिया हुआ है, डिओडिनम ऊपर लिखा हुआ है, बट इट इज डायग्राम फ्रॉम माउथ, क्योंकि स्टार्च
में जब सलाइवरी ग्लैंड मिलता है तो ये ब्रेक डाउन होता है माल्टेज में। ये डिवाइड करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको अलग तरीके से समझाती हूँ। स्टार्च फर्स्ट कहाँ ब्रेक डाउन होता है? फर्स्ट कहाँ ब्रेक डाउन होता है? माउथ में। ओके, माउथ में क्या मिलता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा, एंड वो जाके किस में मिलता है? स्टार्च में, जो हमने राइस में खाया, ठीक है। तो फर्स्ट माउथ में 50% अराउंड वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें उसका टेस्ट समझ में आता है, थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट होता है। फिर हम उसको स्वेलो करते हैं। उसके बाद वो जाता है फूड पाइप के थ्रू या इसोफेगस के थ्रू स्टमक में। स्टमक में HCl सिक्रीशन होता है, वहां पे काफी सारा प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जाता है डिओडेनम में। डिओडेनम में क्या मिलता है उसको? पेनक्रिएटिक जूस मिलता है। ओके, फिर वहां से वो कन्वर्ट होता है माल्टेज में। माउथ में भी माल्टेज में आधा ब्रेक डाउन हुआ है, फिर दोबारा काफी कुछ बच गया है स्टार्च वहां पे, तो डिओडेनम में वो माल्टेज में और कन्वर्ट होता है। अब जो फूड में सुक्रोज है, सुक्रोज दैट मीन्स शुगर ओनली, जो चीनी हम खाते हैं, दैट इज सुक्रोज। ओके, सुक्रोज में सुक्रेज मिक्स हुआ, एंजाइम मिक्स हुआ और उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में वो ब्रेक डाउन हुआ। थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रहा है मुझे इसमें, मैं करेक्शन करके आपको एक बार दोबारा करूंगी, बिकॉज सुक्रोज इज ओनली सिंपल शुगर, उसके बाद ये फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो मैं इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से करवाती हूँ। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ आई थिंक। पेज नंबर 37 में आई है, यहाँ पे हम फैट्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ओके, सैचुरेटेड फैट्स, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड, ये नाम आपने बहुत सुना होगा एड्स में या पैकेट्स में देखा होगा, है ना। ऑलवेज मेक हैबिट टू रीड न्यूट्रिशन फैक्ट ऑफ योर पैकेट्स। जो भी आप खरीद रहे हैं, दाल, ऑयल या कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट रहता है। ओके, उसमें लेबल रहता है किसमें क्या कितना है। बिस्किट्स खरीद रहे हैं अगर, आई डोंट रिकमेंड बिस्किट एनीवे, लेकिन अगर खरीद रहे हैं तो उसमें आप लेबल जरूर पढ़िए, उसमें कितना क्या है। आप अगर कोई हेल्थ ड्रिंक खरीद रहे हैं तो उसमें देखिए शुगर कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है। यू हैव टू सी दैट थिंग, ताकि आप खुद से समझ सके कि कितना ये हेल्दी है। अभी बॉर्नविटा पहले काफी ज्यादा भर भर के शुगर डालता था अपने प्रोडक्ट्स में, फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट ने काफी उस पे वीडियोस बनाई, फिर उसको बॉर्नविटा ने क्या किया कि काफी उसको डराया कि हम आप पे केस कर देंगे, आपने हमारा नाम खराब कर रहे हैं। देन उसको अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी वापस, लेकिन काफी न्यूट्रिशनिस्ट ने, हमने सपोर्ट किया उनको। देन अभी फिर से उनका वीडियो आ चुका है एंड गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया। अभी बॉर्नविटा क्या कर रहा है, जो शुगर कंटेंट जितना वो पहले दे रहा था, उसने कंटेंट काफी अभी कम किया है। पहले उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था, जस्ट शुगर एंड कोको पाउडर। प्रोटीन का हल्का फुल्का अमाउंट था, ठीक है। और ये बहुत सालों से था, लाइक 15-20 ईयर्स से, जब से हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन पार्ट, तब से लाइक 25 ईयर्स पहले से जो हमें पढ़ाते थे, दे ऑल्सो सेड कि बॉर्नविटा इज नॉट गुड। So always make habit to read that labels. Saturated fatty acids, fat are divided in 3 parts. Okay, saturated, monosaturated and polysaturated. यहाँ पे भी नाम से थोड़ा समझ में आएगा आपको। Saturated like काफी saturated है ये, like काफी जमा हुआ सा कह सकते हैं। Monosaturated इसमें 1 fatty acids है, इन पॉली में बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। मोनो मीन्स 1। तो इसके सोर्सेस क्या है? घी, बटर, कोकोनट, पाम एंड पाम ऑयल।
पाम कर्नल एंड पाम ऑयल वनस्पति। वनस्पति दैट मीन्स जो पहले डालडा के नाम से आता था, वो रिफाइंड नहीं होता है, जस्ट वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं और वो काफी लाइक रूम टेम्परेचर में वो जम जाता है, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम इसी तरह पहचान सकते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाए। ओके, लाइक घी हम देखते हैं तो वो जम जाते हैं, जैसे ही थोड़ी ठंडी आती है 20 डिग्री से कम होगा तो वो जमना शुरू कर देते हैं। देन मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैचुरेटेड क्या होते हैं फैटी एसिड्स, उसके एग्जांपल्स है ऑलिव, कैनोला, ग्राउंडनट, सेसमी, पाम ऑयल, पैमोलिन एंड रेड पाम ऑयल। ओके, palm oil is very cheaper than other oil. Now these two, linoleic acid and linolenic, हमने पहले भी पढ़ा है 3 फैटी एसिड्स का नाम, लिनोलेनिक, लिनोलेइक एंड आर्किडोनिक, 3 फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों किसके अंदर मिलते हैं। तो मीडियम लेवल पे किस में मिलते हैं, लो लेवल पे किस में मिलते हैं, लाइक रेड पाम में एंड पामोलिन में, ऑलिव ऑयल में, ठीक है। ग्राउंड नट में लेस देन 35%, राइस ब्रान में एंड सेसिमी, तिल का जो तेल होता है उसमें ये मोर देन लेस देन 35% होता है। लिनोलेइक एसिड में N3 जो होता है, लिनोलेइक मतलब N3 मतलब इसके ये चेन का स्ट्रक्चर है, इसीलिए N3 लिखा जाता है। मस्टर्ड ऑयल में 10%, कैनोला में 8%, सोयाबीन ऑयल में 5%, राइस ब्रान ऑयल में 1%। तो आपको देखना है किसमें ज्यादा है। तो मस्टर्ड ऑयल में सबसे ज्यादा है लिनोलेनिक एसिड, तो हमें प्रिफर करना है मस्टर्ड ऑयल। एंड लिनोलेइक कहाँ से मिलेगा हमको, लिनोलेइक मिलेगा ग्राउंडनट से, हमको ग्राउंडनट भी चूज करना है। और ये दोनों ही आपको मार्केट में कोल्ड प्रेस भी मिल जाएंगे आपको, जो रिफाइनरी से नहीं बना हुआ, लाइक हैंड प्रेस या कोल्ड प्रेस बोलते हैं इनको, किसी ऑनलाइन या फिर किसी लोकल आपका जो लोकली बनाते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप विदाउट केमिकल इनको ले सकते हैं, तो आपको ये दोनों फैटी एसिड्स इजीली मिल जाएगा। सनफ्लावर ऑयल ऑल्सो रिकमेंडेड, पर ये जनरली उतना मिलता नहीं है आपको कोल्ड प्रेस, एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव। अगर ये कोल्ड प्रेस में इसीलिए नहीं मिलता बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो जनरली जो मार्केट में पैकेज आता है वी जनरली बाय दैट, बट उसका कितना ऑथेंटिसिटी है वो नहीं कह सकते। अगर आपको लोकली मिल रहा है कोल्ड प्रेस ऑयल तो प्रेफर कोल्ड प्रेस ऑयल, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सनफ्लावर ऑयल प्लस मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे फैट रिक्वायरमेंट का टेबल है, एक बार ये देख लीजिए। ओके, विजिबल फैट यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम विजिबल फैट मतलब इतना आपको खाना ही है पर डे। ओके, विजिबल मतलब हम जो एडिशनली खा रहे हैं, जो हम ऑयल के फॉर्म में खा रहे हैं या घी के फॉर्म में खा रहे हैं, दैट इज 12 ग्राम पर डे इन एडल्ट्स। इतना तो आपको एवरीडे खाना ही है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल हैं तो। अगर आप ओवरवेट हैं या फिर कोई किसी को अगर कार्डियक इशू है, उस केस में हम 10 तक देते हैं, ठीक है, 10 से ऊपर नहीं देते। या फैटी लीवर है हाई लेवल का या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उस केस में आप पेशेंट को बोलिए 10 तक अगर वो खा सकता है। तो ग्रेजुअली वैसे इंक्रीज करना होता है। पेशेंट इज रेडी टू टेक 10 ग्राम पर डे, देन इट इज वेरी गुड, रिजल्ट विल कम फास्टर। And here is table 2.1. Here is given essential amino acids. Okay, so essential amino acids कौन होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट टेबल कॉलम में देखिए essential है, इसको आप कॉलेज टाइम में मिल पार्ट टीवी एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था इसकी फर्स्ट लेटर यूज करके, लाइक MILPATHTV। ओके, लाइक मिथ्योनिन,
मिथोलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, और इस तरह से हमने सीक्वेंस में इसको बना लिया था। फर्स्ट लेटर्स को आप कोई भी कुछ वर्ड बना लीजिए एंड उससे आप इसको याद कर लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड सेकेंड इज कंडीशनली एसेंशियल्स। कभी कभी चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि एवरीडे चाहिए, तो दे आर कंडीशनली एसेंशियल। किस केस क्या है उसके बेसिस पे। एंड थर्ड इज नॉन एसेंशियल, मतलब ये बॉडी में भी बन जाता है, तो आपको इसको अलग से सोर्स के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। So essential we have to read first: methionine, tryptophan, valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, lysine, threonine, arginine, histidine. Okay, and histidine बच्चों में ही चाहिए होता है, बड़ों में उतना चाहिए नहीं होता है। जब तक उनकी ग्रोथ होती है, मेनली ब्रेन ग्रोथ, तो उनको चाहिए होता है, लाइक फर्स्ट 5 years तक ज्यादा चाहिए। प्रोटीन कंटेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फूड्स। ओके, ये एवरेज दिया हुआ है, एक सीरियल में कितना से कितना हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप सीरियल वेरी कर रहे हैं, अलग से आप अगर NIN की बुक फॉलो करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बुक फॉलो करेंगे, मैंने आपको PDF भेजा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो हर एक सीरियल का अलग से न्यूट्रिटिव वैल्यू है। तो सीरियल में कितना है, 6 to 14 तक है एवरेज, इट इज एवरेज रेंज। मिल्क में देखिए कितना ज्यादा है, 53.5 to 4 तक है। एंड लेग्यूम्स में 18 to 24 है। मिल्क पाउडर में 26 to 27 है। सोयाबीन 43, नट्स एंड ऑयल सीड 18 to 14, 40। नट्स में बहुत अच्छा फैट्स एंड बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, तो एवरीवन मस्ट हैव टू टेक 1 fist of like nuts every day. It should be mixture of nuts. You can have some ground nuts, some almonds, some walnuts. एक मिक्सचर बना दीजिए जो सुबह रोज सोक करने के लिए रात को रख दीजिए, रोज सब लोग थोड़ा थोड़ा, लाइक यू कैन यूज एट प्रसाद ऑल्सो, जैसे प्रसाद सबको बांटते हैं सुबह में, उस तरह से आप सबको नट सुबह में दीजिए, तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट एंड योर ब्रेन ऑल्सो। Now here is a table 2.4.3। यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितना प्रोटीन्स चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। इफ मैन इज 60 kg, then he needs 60 gram of protein. Even if is sedentary worker, moderate worker और heavy worker, उसको प्रोटीन सेम ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन किस पे बेसिस होता है, उसका बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, ना कि उसका वर्क पे, ठीक है। वुमेन के केस में 50 आइडियल वेट लिया गया और उसके हिसाब से 50 ही प्रोटीन होगा, सेम ही है 1 gram per kg ऑफ बॉडी वेट। हैवी वर्कर, मॉडरेट वर्कर, वर्क पे चेंज नहीं होगा, सेम जैसे पहले पढ़ा। और देन प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगा +15, लैक्टेशन में बढ़ जाएगा, लैक्टेशन में 2 रेंजेस में बांटा गया है, 0 to 6 एंड 6 to 12, ठीक है। क्यों डिफरेंस बांटा गया है, क्योंकि जो 0 to 6 month है, इसमें बच्चा सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, तो उसमें ज्यादा सिक्रीशन चाहिए, ज्यादा फॉर्मेशन चाहिए मिल्क का, तो उस केस में +25 है। अगर पर्सन 50 kg का है, फीमेल 50 kg की है, तो 50 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए ही, +15, दैट मीन्स 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए उसको, ओके। एंड अगर वो लैक्टेशन पीरियड 6 to 2 month में है, इट इज 6 to 12, ओके। जो नेक्स्ट वाला लाइन है यहाँ पे 6 to 12 month होगा, ठीक है। फर्स्ट 0 to 6 month लाइक प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 6 month, एंड सेकेंड लाइन इज 6 to 12 month होगा, ओके। ये आप करेक्शन कर लीजिए अभी, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे इफ मदर इज 50 kg, तो उसको
बेबी को बर्थ देने के 6 महीने बाद से अगले 12 महीने तक उसको कितना प्रोटीन लेना है? 50 + 18, ओके, दैट मीन्स 68. And in first 6 months that will be 75. ओके, तो फर्स्ट 6 मंथ प्रोटीन का ज्यादा ध्यान रखना है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छा हो और बेबी का मेंटल ग्रोथ अच्छा हो, बिकॉज आजकल बहुत कंप्लेंट्स है पेशेंट्स का, फीडिंग नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में, जैसे डिलीवरी होता है ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, तो उस केस में मदर का डाइट को ध्यान रखना है ताकि वो इन्फेंट को, नहीं तो तुरंत डॉक्टर्स क्या करते हैं उसको बॉटल फीड में डाल देते हैं, दैट इज नॉट गुड. अगर बच्चा बॉटल फीड में जाएगा तो सिक्रीशन और कम होता जाएगा. तो कोशिश करना है आपका फैमिली में भी अगर कोई, तो रेकमेंड करना है कि अगर सिक्रीशन नहीं भी हो रहा है तो बेबी को सक कराना है, तो जितना सक कराएंगे सिक्रीशन उतना ज्यादा होगा. ये स्टिमुलेट करता है, सकिंग करने से स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को. एंड फीडिंग जो मदर का है वो तो ज्यादा प्रोटीन रिच होना ही चाहिए, उस पर तो ध्यान देना ही है, प्लस ये पॉइंट भी ध्यान रखना है. नाउ चिल्ड्रन 1 to 3 इयर्स में कितना रिक्वायरमेंट है? 1 to 3 इयर्स में बेबी का वेट अगर 12.2 है तो उस केस में 22 हो जाएगा. हमने फॉर्मूला भी निकाला है ना, पीछे पड़ा है, 1 से 1.5 kg ऑफ पर kg ऑफ बॉडी वेट, वैसे करके भी हम कर सकते हैं. ये एक आइडियल दिया हुआ है, एक एवरेज दिया हुआ है, लेकिन अगर बच्चा 12 से ज्यादा है तो हमें प्रोटीन भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. बॉय एंड गर्ल में थोड़ा डिफरेंस है वेट में, तो वेट में डिफरेंस है तो आपका प्रोटीन में भी डिफरेंस होगा. गर्ल में आप देखिए 10 to 12 इयर्स में वेट तो कम है गर्ल का, लेकिन उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा दिया है. क्यों? क्योंकि उनमें सेकेंडरी चेंजेस हो जाते हैं, इसके लिए उन्हें स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा प्रोटीन देना है. देन जब वो 13 to 15 इयर्स में आते हैं तो बॉयज को ज्यादा प्रोटीन देना है. एंड लास्ट में 16 to 18 इयर्स, यहाँ पे भी डेवलपमेंट कंटिन्यू ही होता है, इसीलिए नॉर्मल जो आप सेडेंटरी मेन जो देख रहे हैं 60 kg का 60 ग्राम प्रोटीन, तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में प्रोटीन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी ग्रोथ अभी ड्यू रहती है और प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है. ओके, देन आज के लिए इतना ही. कुछ क्वेरी है तो पूछिए. सो मेक श्योर आपके घर में सब प्रोटीन रिक्वायरमेंट सही से हो रहा है, क्योंकि अगर प्रोटीन लैकिंग डाइट होगा तो भी वेट गेन होता है. ओके, ये ध्यान रखिए. क्यों वेट गेन होगा ये समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि वाटर रिटेंशन होगा. अगर प्रोटीन क्या करता है? वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करता है, राइट? तो वाटर रिटेंशन होगा, बॉडी फुली रहेगी, ठीक है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में देना पड़ेगा. और अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रोटीन वेट तो बढ़ेगा ही, राइट? तो हम जब वेट लॉस कराते हैं एक अनहेल्दी पर्सन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी वाटर लॉस भी होता है बॉडी से, क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत होता है. तो जब हम अच्छा ऑप्टिमल अमाउंट में आप प्रोटीन देते हैं एंड साथ में फैट लॉस कराते हैं, तो उनका वेट फर्स्ट मंथ में ज्यादा कम होता है, फिर थोड़ा स्टबन फैट से लूज होता है, इसीलिए फिर फैट लॉस कम धीरे हो जाता है, वेट लॉस धीरे हो जाता है. लाइक फर्स्ट मंथ में रिकमेंडेड है 5 to 6 kgs, देन सेकेंड मंथ में 3 to 4 kg, 3 to 4 kg ऐसा करके रिड्यूस होता है. गुड इवनिंग मैम.
हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर जयेश, बताइए। Need little help. Can I share some of my blood reports which was done yesterday? Your blood reports? Yeah, sure. And which number we want to share? That is the more important. Because Can you according speak to the louder, please? which number I want to share that number reports. This is my personal blood reports. Oh, you want to share personal reports? You can share here only, or you can share. Yeah, you can share here only. You can tell you here only. In which number that? Because it is a bunch of number soft file now. That's why. And one of my mom is also having some problem. Yesterday, doctor was told me that she's having some kidney problem. Kidney is shrinking. So immediately I started some other medicine which we are knowing very well. And Which kidney disease she is suffering from? there's a kidney shrinking now because she is 84 now. Mm-hmm. जैसे कि So, what problem is she is suffering? Is there any water retention or what? see, Have you consulted any doctor, any nephrologist? yes, we So consulted. I need that doctor prescription plus that reports, KFT Okay. reports, kidney function test. KFT they are not done. There was an AGF test. AGF test. And Acha. AGF test was 0.49 filtration rate. So they was told me to first concentrate increase that 49 to supposed to come at least 90 or something that. So immediately I talked with my brother who is in US. So he said, okay, we'll start the medicine, and he started medicine which he was given to me. But that is a homeopathic medicine, and that is Okay. 100% he said recovered will be start. Today, by bless of God, that mom was not that much lethargic. Previously, she was very lethargic. So we was trying to get the. Actually, lethargy also due to sodium, low sodium. Due to low, if the person is suffering from low sodium content in his body, Hmm. then it is the cause of like lethargic. If previously she was lethargic, that maybe she is having low sodium in her blood. Okay. I will share the reports. Only the mail or WhatsApp number required. This is for Yeah. study purpose, no, not for commercial any. This only the study for her only, or for me only. And is we want to study if something not good for us, we want to change the things in food or something that. And whatever, Okay. whatever, First, whatever, you have. whatever energy exchange for that will bad. That is not big problem for that. Actually, to understand case, I need that doctor prescription and like her blood parameters. Okay, okay. First, you send I that, will, then I I can will, understand the situation. I will share first thing. You check, then we'll talk later Then on. we can talk about this. Okay, no issue. Thank Yeah. you very much. Yes. Thank you. I think all are left. Only Kusum madam, me, and sir, Devnath sir, and you. 4% are there here only. Sorry. Uh, Actually, your I, voice is coming very. only 4% are on track. Yes. Kusum madam, me, and Devnath sir, and you. Yes. I Yes. think it is now Now 8. it is. Yeah. Will we close the session? This. No, I close at only at time. Okay, I Okay. must prefer that time management. Okay. So Okay. 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 I No. have to be there till 8. Okay. It is No. my priority. No issue. No issue. Yes, Okay. Thank I you, ma'am. try to join at 7 and try to left 8. Even I like left teaching, but I have to. What I Okay. commit, then I have to No, complete that. the chart is very nice. Preparation was there, but we it is again to study that all time by time with the patient. It take lot of time. The chart which today we study, that is a very nice reports, but we want to get study how to follow that chart with any person. Yes.
Actually, these charts are followed by so many years ago, like from And 2000. We are studying same chart from 2005. So it is very old chart, so no update and now this came. is basic. This is basic thing which we Okay. have to follow. Okay. Hmm. But it will again take time when we are having some patient and we want to keep in our brain this chart are little difficult. What is the easy way? Chart is depend on the patient's lifestyle and all. These are this is basic things which I'm teaching. Okay, these Okay. are bookish things. But when we deal with patients, it is little different. We have to work on this basic thing, but we have to be practical on the patient's lifestyle, her parameters, and all these things. Like so, first of all, we have to know this basic thing. After that, we have to manage patient's lifestyle and patient disease. So this is not enough to work actually, basic things, Mhm. but it is very important to work. No, So this is important. This I know, but how to uh, bring in our lifestyle? That is how to remember and bring in while we will. if you practice in daily life, in your daily Uh, life, then uh, I discuss so many practical things in between, no? uh, So you can do in your daily life, practice in your daily life. So which I told you that how much oil you have to require, है ना? मैंने कैसे बताया फैमिली में कैसे कैलकुलेट करना है ना, पिछला क्लास में मैंने बोला है, तो वो आप करना स्टार्ट करिए. जैसे आप खुद करना वो स्टार्ट करेंगे, then you तो can अभी recommend to patient. current days only yearly we are consuming at least 12 kilos, not more than that. That is not big problem for us. Only 12 kilos are three people and filter single coat filter oil, that is. Okay, sorry to interrupt you, Dr. Jayesh. I have some other meetings Okay. this age. Yeah. Okay. Good night, everyone. Good night. Thank you.